सक्सेस के लायक बना देगा। অবশ্যই আমার চুলের মতো সাবস্ক্রাইব করে দিও সবাই। তো আমি মুসলিম বলে আমি যে এতগুলো হিন্দু ভাইদের মধ্যে ব্যায়াম করি, উপরে নোড়া নিচেই শির আর মাঝখানে আমরা সবাই মোটামুটি ভাষাকে শেখাচ্ছি। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সো আজকে চলে এসেছি জিমের মধ্যে। আজকে প্রথমত আমরা করব চেস্টের ওয়ার্কআউট। তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে যারা, তাদেরকে একটু দেখাবার চেষ্টা করব। আমাদের প্রথম নাম্বারে যে আসছে আমাদের স্যার, ঠিক আছে স্যার, আপনার নামটা বলুন। মৃগাঙ্ক বিশ্বাস। মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, ঠিক আছে। তারপরে এদিকে আছে আমাদের সব বডি বিল্ডাররা, কি নাম? সন্তু চৌধুরী। সন্তু চৌধুরী। তারপরে এটা কে? দিবাকর মন্ডল। দিবাকর মন্ডল। দিবাকর মন্ডল, সবাইকে একটু বলে দাও যেন সাবস্ক্রাইব করে দেন তোমার চুলের। অবশ্যই আমার চুলের মতো সাবস্ক্রাইব করে দিও সবাই। তারপরে আছে আমাদের মলাইদা। আমাদের মলাইদা মানে হাই একদম আমাদের সব থেকে কাছের ট্রেনার, ঠিক আছে, কাস্টরডাঙ্গা স্টার জিম। সো আপনারা সকলে চলে আসবেন, আশেপাশে যারা আছেন, আমার বন্ধুরা যারা দেখছেন। আজকে আলম ভাই চেস্ট ওয়ার্কআউট করছে, আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালো লাগলে বেল আইকনটা ক্লিক করবেন। হ্যাঁ, চেস্ট ওয়ার্কআউট ভালো করে ফোকাস করবেন কিভাবে করছে, ভালো দেখবেন। আর একটা কথা, গুড নিউজ হচ্ছে আমাদের মলাইদা নতুন একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করেছে। সো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংকটা দিয়ে দেবো, আপনারা সেটাকে গিয়েও ভিজিট করতে অবশ্যই পারেন। ঠিক সাবস্ক্রাইব আছে, করবেন আর বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, ভেরি গুড। সো এতগুলো আমার জিমের যারা পার্টনার, ঠিক আছে, দীপকর থেকে শুরু করে আমার মলাইদা থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু হিন্দু, শুধু আমি মুসলিম, তাই তো? হ্যাঁ, তো আমি মুসলিম বলে আমি যে এতগুলো হিন্দু ভাইদের মধ্যে ব্যায়াম করি, ওয়ার্কআউট করি, আমাকে একটা যে আলাদা রেসপেক্ট করে। অনেকে বলে হিন্দু মুসলিম একটা ভাগাভাগি করে। সো আমাদের মধ্যে সেরকম কিছু নেই, উল্টে আমাকে বিশেষ করে এই জিমের মধ্যে একটা আলাদা রেসপেক্ট আছে নাকি? একদম সবাই আমাকে দাদা বলে বা ভাই বলে সবাই আমাকে ভালোবাসে। সো আপনারা এরকম কিছু মনোবৃত্তি তৈরি করবেন না। দেখছেন তো পার্থ চ্যাটার্জির ব্যাপারটা, মানে ইজিকল টু সবকিছু রাজনীতি, হিন্দু মুসলিম কিছুই নয়, শুধুমাত্র আমরা মাঝখানে পড়ে একেবারে কি একটা বলে না, মানে ঝুট ঝামেলা, এরকম ঝুট ঝামেলা না, সেই বলে না শিলনোড়ার ঘষাঘষি মাঝখানে মরিচের মরণ, সেরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। মানে উপরে নোড়া নিচেই শির আর মাঝখানে আমরা সবাই মোটামুটি ভাষাকে শেখাচ্ছি। সো ওসব কিছু না, চলুন আজকে ওয়ার্কআউট শুরু করা যাক। जब तुम कामयाब होते हो तब खुशियां बांटने पराये तक चले आते हैं, और जब तुम हार जाते हो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। जब मैं मेरे दोस्तों के साथ बात करता हूं अक्सर वो कहते हैं जो काम मैं अब कर रहा हूं उसे मैं दिल से नहीं चाहता। वो काम ये नहीं है जिसका मैं सपना देखता था। इस काम के लिए मुझ में जज्बा नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बदलाव इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम अपनी लाइफ में बदलाव नहीं लाते, लोग आसानी से बदल नहीं सकते। खुद को बदल पाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अपनी लाइफ को बदलने के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा, सक्सेस को पाने के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। अगर तुम वैसे ही जीते हो जैसा तुम जीते आए हो तो तुम्हारी लाइफ में बदलाव कभी नहीं आएगा। अगर मैं खुद को किसी लिमिट में रखता हूं तो मैं मेरा बेस्ट नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी उस लिमिट से बाहर जाने की जरूरत है और अपना बेस्ट देने की जरूरत है। एक किताब खोलो और अपना स्टेटमेंट लिखो, उसमें अपनी इच्छाएं लिखो। अगर तुम्हारे पास इच्छा शक्ति नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है, कुछ महीनों के लिए अपने मोबाइल से, टीवी से छुटकारा पाओ और उन चीजों को जानो जो तुम कर सकते हो। Are you frustrated? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या है सफलता के अपोजिट? क्या सफलता के अपोजिट असफलता है? ना, अपने आप को चैलेंज ना देना सफलता के अपोजिट है। रिस्क ना लेना सफलता के अपोजिट है। चुनौतियों का स्वीकार ना करना सफलता के अपोजिट है। एक लूजर की तरह मैदान छोड़कर भाग जाना सफलता के अपोजिट है। मैं ये नहीं कर सकता, ये सोच सफलता के अपोजिट है। तुम अपने आप को चैलेंज क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम चुनौतियों का स्वीकार करके आने वाले संकट से डरते हो। क्या है संकट? जब हम उस चीज का सामना करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, हम इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो है संकट। क्यों तुम अपने बारे में, अपने भविष्य के
बारे में कभी नहीं सोचते? क्यों तुम ये भी नहीं जानते कि तुम कितने कीमती हो? क्यों तुम ये भी नहीं जानते तुम्हारे पास उन लोगों से ज्यादा टाइम है जो हॉस्पिटल में पेट पे आखिरी सांसें ले रहे हैं और जीने की प्रार्थना कर रहे हैं? तुम्हारे पास टाइम है जो डायमंड से भी कीमती है। क्या तुम्हें पता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भगवान ने हमें आज दुनिया की सबसे कीमती चीज दे दी। तुम्हारे माता पिता के लिए तुम दुनिया की किसी भी चीज से मूल्यवान हो। बहुत सी चीजें थी जो तुम बड़े होकर पाना चाहते थे लेकिन तुम उन्हें पा ना सके। तुमने जो सपना देखा था उससे तुम पूरा ना कर सके। लेकिन याद रख, ऐसा नहीं है जो चीज तू चाहता है वो तुझे मिलेगी, लेकिन तू जिस चीज के लायक है वो चीज तेरे लिए रिजर्व है। याद रख, दुनिया में हर चीज चोरी हो सकती है लेकिन तेरा जो सपना है वो तुझसे कोई नहीं चुरा सकता। छोड़ वो काम जिसे तू नहीं चाहता। अरे अपने सपनों के लिए जी। तुझे आगे कहाँ जाना है उसके बारे में सोच। तुम्हें जो करना है उसके लिए प्लान्स बनाओ, गोल सेट करो, क्योंकि तुम्हारे बचपन के सपने चोरी नहीं हुए, आज भी वो तुम्हारे हैं और आज भी वो तुम पूरा कर सकते हो। जिसे तू चाहता है उसे पाने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर। अगर तू कोशिशें करेगा, तू कठिनाइयों का सामना करेगा, ऐसा बहुत बार होगा जब तू लड़खड़ाएगा, लेकिन तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही फेल होने का डर, ना सफल होने की चिंता, क्योंकि अभी तू जिंदा है, अपने पैरों पर खड़ा एक स्ट्रांग बंदा है। रास्ते में तू मुश्किलों को हराएगा। तुझे गिराने के लिए बड़े से बड़ा तूफान आएगा। जैसे समुंदर की लहरें आती है जाती है, ये तूफान भी गुजर जाएगा, क्योंकि आकाश और समुंदर के बीच कुछ भी स्थिर नहीं रह पाएगा। तू दर्द को स्वीकार करेगा, उससे अपना हमसफर बनाएगा। तेरे लिए वो प्रोटेक्टर है, इंस्पिरेशन का काम करेगा। यही घाव तेरे संघर्ष के जिंदा सबूत बनेगा, जो तुझे एक मजबूत इंसान बनाएगा। क्योंकि एक स्टार का जन्म होने से पहले उसका विस्फोट जरूरी है होता। बिना प्रत्यारोपण के प्रकाश नहीं होता। घाव से टूट जाने के बिना कोई ग्रेट नहीं होता। उसकी ही मुस्कान सबसे खूबसूरत लगती है जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा है होता। घाव से टूट जाने के बाद अगर तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाई नहीं करेगा तो बस ये सपना बना रहेगा। बस आगे बढ़ता जा, तू बस आगे बढ़ता जा। फेल हुआ तो कोई बात नहीं, फेलियर तुझे एक्सपीरियंस देगा। ये एक्सपीरियंस तुझे सक्सेस के लायक बना देगा। इस लड़ाई में जीत जाने के बाद हवा की तरह फ्री तू आग बन जाएगा। जो तूने चाहा है उससे ज्यादा पाएगा, लेकिन कभी भी तू नहीं रुकेगा। जब तक तुम ये बात सुन लोगे तब तक तुम्हारी बॉडी में 50,000 सेल्स मर जाएगी। और नई सेल्स उनकी जगह ले लेगी। जब तुम सिर्फ एक कदम चलते हो उस समय 200 अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी लाइफ के दौरान तुम 300 करोड़ बार दिल की धड़कन सुनोगे और इस दौरान ये 180 मिलियन लीटर ब्लड को पंप करेगा। तुम अपनी पलक झपका रहे हो, तुम 43 अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारा शरीर एक अमेजिंग मशीन है